Welcome back to the Influencers Talk. I'm your host Yashika Chabra, and today we have the multi-talented Namita Chaudhary with us. She's not only an influencer but a professional singer, YouTuber, performer, advocate, and even an entrepreneur. With so many hats to wear, she's the perfect example of modern multitasker. Thank you so much for coming to our show, ma'am. My pleasure, Yashika. And let's start with the questions now. So my first question for you is, how did you started your career? Like, what motivated you? So basically मैं आपको थोड़ा पहले से बताती हूँ. बचपन से गाती हूँ. मेरी मम्मी बताती है कि 2.5 से 3 साल की थी तभी से मैं हम करते हैं जब हम बोलते भी नहीं हैं अच्छे से, तब से मैं गाती हूँ. उसके बाद एक ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो बहुत ज़्यादा अपनी हॉबी परस्यू करने का मौका नहीं मिला शुरू में. सो मैं हमेशा से म्यूज़िक करना चाहती थी, बट ये था कि पढ़ाई करनी है पहले, तो मैंने पहले पूरी पढ़ाई पूरी की. उसके बाद 2013 में आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम श्री गौतम काले इंदौर से ही, और उनसे मैंने ट्रेनिंग ली. उसके बाद एक वीडियो 2015 में मैंने रिलीज़ किया, वो बस एक स्टॉप हो गया था. I was also pursuing CS. I did BCom, LLB, LLM, and then I was also doing CS. उस सब में टाइम ही नहीं मिलता था. बट देन 2017 में I just decided कि अब वीडियोज़ और करने हैं. I started doing videos, shooting them, uploading, and वो जो रिस्पॉन्स मिला उसके बाद I didn't stop. So this was a basic story. Okay. Yeah. So with the diverse range of interest, how did you manage all the roles? See, it's very easy when you love something and you're doing it. So managing all these things have not been a force to me at any point of time. I have done this all with my, willingness to do it. Yeah. Be it advocacy, be it my studies, be it entrepreneurship and singing, you all know. So मेरे लिए कभी भी ये force चीज़ नहीं थी, तो मेरे लिए बहुत easy था. Okay. So you are influencer too. So now, as Instagram has launched a new feature, Yeah. as you know, the blue tick feature. Yeah. So what are your perspective on it? See, there are n number of creators and influencers or whatever you call, who have been putting dedicated efforts in their particular fields. तो उस केस में जब यहाँ पे एक 699 रुपीज़ वर्थ कमोडिटी अगर बना दिया गया है ब्लू बैच को, तो मेरे लिए वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है. ऑल्सो मेरे केस की अगर बात करें तो आई विल ऑल्सो स्ट्राइव फॉर जेन्युइन एफर्ट्स, और मैं मेरिट्स के बेसिस पे अपना ब्लू बैज अर्न करूँगी, नॉट जस्ट अ कमोडिटी के. Okay, I hope कि आपको आपकी मेहनत से जल्दी मिले. So my next question is, I've heard a lot about your live shows and concerts. So how does it feel to perform in front of such a massive crowd? It's a feeling that cannot be described in words. Basically, जब कोई ऑडियंस में से नमिता नमिता चिल्लाता है, या फिर छाप तिलक, एरी सखी, वेडिंग मैशअप, या आज दिन चढ़िया, ऐसे सॉन्ग्स मेरे सॉन्ग्स के थ्रू मुझे पहचानता है, सो दैट इज़ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड. आई सपोज मेरे लिए उससे बेटर फीलिंग अभी तक कोई नहीं हुई है. सो व्हेन यू काउंट ऑन ऑल द फीलिंग्स, दिस इज द बेस्ट फीलिंग. Okay. So can you please sing a few lines of Chhap Tilak for us? Sure. छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाई के. छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाई के. नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के. सब कुछ मोरा छीनी रे, मुझसे नैना मिलाई के. छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के. Wow, so you have such a lovely voice. Thank you so much. Okay, so moving on, as you have, so ma'am, how has social media helped in shaping your career and connecting with your friends? So मेरे करियर में
सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। सोशल मीडिया से ही मैं अपने फैंस तक पहुंची हूँ। मैंने कभी मुंबई जाके या कोई बड़ी सिटी जाके अपना टैलेंट शोकेस करने की कोशिश नहीं की, ऑल्दो मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स और रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट किया, बट देन व्हेन यू आस्क अबाउट कनेक्टिंग माय फैंस एंड शेपिंग माय करियर, इट हैज़ ओनली बिन सोशल मीडिया दैट आई हैव शोकेस्ड इट। तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। Nice. Is there any artist or producer you would like to work in future with in your music journey? Yeah, Vishal Mishra, I would say, is the person who I want to work with. Basically, उनका जो एक feel होता है song में, I think I will do great justice with that kind of songs. So Vishal Mishra, yes, I think is the person. Okay. So, what's your view on versatility? वर्सिटैलिटी एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको डिफरेंट जॉनराज ट्राई करना चाहिए, और उसके बाद लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू ऑलवेज हैव टू बी वर्सिटाइल। अकॉर्डिंग टू मी, आप अपना एक नीश या फिर एक जॉनरा डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने डिसाइड किया कि मेरी वॉइस पे सबसे ज़्यादा सॉफ्ट, सोलफुल और रोमांटिक सॉन्ग्स ही वर्कआउट करते हैं। आई हैव संग पार्टी सॉन्ग्स, आई हैव संग रॉक सॉन्ग्स, आई हैव संग फोक म्यूजिक ऑल्सो, सूफी ऑल्सो। सो यू हैव टू डिसाइडेड, एंड इट विल बी डिसाइडेड ग्रेजुअली ओनली। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। सो यू विल ऑल्सो ऑलवेज keep on learning in this particular thing. Is there any piece of advice you would like to give to the upcoming artist? Yes, I would like the upcoming artists and the budding artists to be consistent in first place. कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसको बनाए रखना सबसे मुश्किल टास्क होता है। मतलब ये सभी लोगों का, आई डोंट टॉक अबाउट द फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, द पर्सनल स्ट्रगल्स और एनीथिंग, बट कंसिस्टेंसी इज समथिंग दैट एन आर्टिस्ट should always try and incorporate in the process of being a musician. So एक वो चीज़, एक be true to your art. आपके आर्ट के साथ अगर आप सच्चाई रखेंगे तो अब मेरे ख्याल से आप ज़्यादा आगे जा पाएंगे। एंड ज़रूरी नहीं है कि आज 10 गाने गाए हैं तो 10 फेमस हो जाएंगे आपके। यू हैव टू वेट, यू हैव टू गिव पेशेंस टू योर आर्ट। तो पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड the trueness to your art. Okay. Thank you so very much, ma'am, for coming to our show. My pleasure. Thanks for having me. And giving us your valuable time. Thank you. Okay, so before ending this episode, we would love to hear from you. Okay, छाप तिलक सुनना चाहेंगे शायद आप? Okay. छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलई के। छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलई के। नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैना मिलई के। सब कुछ मोरा छीनी रे, मुझसे नैना मिलई के। छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलई के। Thank you so much, ma'am.